Okay, so I will start now. So today we will start with lecture number 14, and uh, so um, lecture number 14 we have done in last class. In lecture number 13 we have done the modeling of membrane module, and that is for case 1. Okay, when we have assumed constant molar flux. Now today, case 2 will do modeling of membrane. Okay, so I will present you now lecture number 14. I will present, so you can see on your screen now. So you can see we will do today modeling of modules. That is case number 2. Case number 1 we have done in last class, and case number 2 we will do here. So uh, case number 2 means we are doing the various cases for J. So here the permeate flux is proportional to transmembrane pressure drop. That is J is equal to LP into delta P. Okay, and it is a completely retentive membrane. So there is a negligible osmotic pressure. Okay, negligible osmotic pressure because your it will depend on Cp. Osmotic pressure is a colligative property, and so we are assuming it is a completely retentive membrane. So there will be negligible osmotic pressure because Cp will be negligible. So again, we will do for two cases. We will do it for two cases: spiral wound module, that is, and plate and frame module. Okay, so that will be for rectangular channel, and another we will do for radial coordinates. Okay. So first of all, we will do for rectangular channel. You can see the diagram for rectangular channel on your screen. It is a rectangular channel. Q in and Q out are the flow rates in and out. H is the half height of the channel, and you can see that there are two flows. Permeate flow is coming from the two sides, one at top and bottom. Okay, so it is this is the diagram of a rectangular channel, and it will be in three dimension. So this is the flow through a rectangular channel, and for negligible osmotic pressure, and here J will be LP into delta P. So this is your case number 2. So we have everywhere, like we were taking J as constant in last case. Now everywhere we'll put J is equal to LP into delta P. So some equations you have to remember. Like this equation is the governing equation of transmembrane pressure drop is d2p by dx square is equal to 3 mu by h cube into J. Okay, so this is the governing equation of transmembrane pressure drop, and we will put the value of J is equal to LP into delta P. So we'll get the equation 3 mu by h cube is into LP into delta P, and we have the two boundary conditions: x equal to 0, delta P equal to delta P in, and x equal to 0, uh, x equal to 0, d delta P by dx is equal to minus 3 mu by 2h cube into W into Q in. Okay, so these are the two boundary conditions, and both the boundary conditions are given at x equal to 0. Because at x equal to 0, we know the pressure will be P in and the flow rate will be Q in. Okay. So these are the two boundary conditions, and we have this governing equation in terms of d delta P. So now we'll solve this equation, and we'll put lambda is equal to under root 3 mu LP by h cube. So your governing equation will become d delta P by dx square minus lambda square delta P equal to 0. And we'll solve this equation. There is a standard solution for this equation. In mathematics, you have studied the advanced engineering mathematics. So there you can find a standard solution for this equation. And delta P you will put e raised to the power mx. So you will get m square minus lambda square equal to
equal to 0, so m will be plus minus lambda. So you will get delta p is equal to in terms of x is equal to c1 e raised to the power lambda x and c2 e raised to the power minus lambda x. And you have the two boundary conditions, x equal to 0, delta p equal to delta p in. So you will get c1 plus c2 is equal to delta p in. And second, so you will get delta px is equal to c1 e to the power lambda x plus c2 e to the power minus lambda x, and d delta p by dx will be c1 lambda e to the power lambda x. You will just differentiate this equation minus c2 lambda e raised to the power lambda x, and d delta p by dx at x equal to 0 will be c1 minus c2 into lambda. So you will put this in the second boundary condition. So you have the second boundary condition, x equal to 0, d delta p by dx is equal to minus 3 mu by 2h cube into w into qn. So you will get c2 minus c1 into lambda. You will take lambda on the right hand side. So you will get c2 minus c1 and you have c2 plus c1. So you will get the values of c1 and c2 from these two equations. Okay, so these two boundary conditions will give you the value of the constant. Okay. So when you will solve this equation, you will get delta px by delta pi equal to cos h lambda x minus 3 by 2 mu qi by h cube w lambda delta pi sin h lambda x. Okay. So this is our aim. Everywhere we are finding the pressure drop. We are finding the value of delta px, how the pressure is varying in the along the length of the membrane. X is in the x direction along the length of the membrane. So here we have found how the transmembrane pressure profile is varying as a function of x. Okay. So you will get in this, you are getting in terms of sin h and cos h. Delta px you are getting in terms of sin h and cos h. And the profile of axial pressure drop will be nothing but delta pi minus delta px. So once you have got px, then you can find anything. You can find delta pi minus delta px also. Just it is a mathematical algebraic equation, simple. So that will be delta pi into 1 minus cos h lambda x plus 3 by 2 mu into qi by h cube w lambda into sin h lambda x, where lambda is equal to 3 mu lp by h cube under root. Okay, so you have got the profile of axial pressure drop and the transmembrane pressure profile as a function of x. And this everywhere we are finding here. In this case of modules, we are just finding the value of pressure drop along the membrane. So this is our work here. In case of the membrane modules, we are finding the pressure drop, and this is how we are doing. This is called the modeling of the membrane module. Okay. So next, you can everything you can find now. You have got delta p, so you can find everything now. Delta p total pressure drop along the module length you can find out. You can put x as L, so you can find delta pi minus delta pl. So you'll get that as delta pi into 1 minus cos h lambda L plus 3 mu qi by 2 h cube w lambda into sin h lambda L. So everywhere you can see it is now cos h lambda L and sin h lambda L. So everywhere now x has been replaced by L. Okay. So total pressure drop will be across the module length. So this now fractional recovery of feed. So in last class we have done F as the fractional recovery of feed, and you have seen we were taking F as Q permeate by Q in, that is your flow rate in permeate by flow rate in. Okay, so it will be
F will be 2WLP integral 0 to L delta Px dx by Qi. So that will be your fractional recovery of the field. And when you will calculate this value, it will come out to be 2WLP into delta Pi by lambda Qi into sin h lambda L minus 3 mu Qi by 2h cube W lambda by delta Pi cos h lambda L minus 1. So here a lot of mathematics is involved. Sin h and cos h is coming here. So you can understand you have to practice a lot and just practice these equations and it will be easy for you then. Sin h and cos h का आपको सब इंटीग्रल पता होना चाहिए. ओके कैसे इसको इंटीग्रेट करते हैं sin h को और cos h को इंटीग्रेट करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं. ओके so these all integrals you must do and you must just practice these equations once and it will be very easy for you then. And now you have got F, so now you have got delta Px, so you can also find J. So J is nothing but LP into delta P. So you can find J as the profile of permeate flux. Jx is equal to LP into delta Px. So Jx will be LP into delta Pi cos h lambda x minus 3 mu Qi by 2h cube W lambda delta Pi sin h lambda x. And so this is the equation for J. That is the profile of permeate flux. Okay. And governing equation for Q is equal to 2h into U. Okay, Q is nothing but in terms of velocity. Everywhere you can put the flow rate and velocity can be related very easily. And U du by dx is minus j by h. U is as a varying function of x. So this you are getting from material balance and okay, component material balance and material balance. You have some equations. So you will get when you will integrate this equation, you will get integral du is equal to LP delta Pi by h integral 0 to x integral 0 to x 3 mu Qi by 2h cube W lambda Pi sin h lambda x minus cos h lambda x dx. So this will give you the profile of cross flow velocity also. आपके पास J है तो आप उसको जस्ट इंटीग्रेट कर लेंगे तो आपका U भी आ जाएगा. Okay. So that will give you the profile of cross flow velocity. And Ux by Ui will be 1 minus LP delta Pi by h lambda Ui sin h lambda x minus 3 mu Qi by 2h cube W lambda delta Pi into cos h lambda x minus 1. So this will be the velocity profile of cross flow velocity, how U is varying as a function of x. Okay, once you have J and you have found out P से आपका J आ गया और J से आपका U आ गया, just integration आपको करना है इधर. So this is your advanced engineering mathematics. You have done all this in an advanced engineering mathematics course in first year. Okay. So here you are getting the velocity profile along the or you can say the cross flow velocity along the tube, along the module. Okay, how U is varying with x. तो इसका सबको आपको physical significance पता होना चाहिए. Okay. And so we were now so ये इक्वेशन आपकी आ रही है du by dx. मेरे ख्याल से ये इक्वेशन हम लोग ने पहले कर चुके हैं हम लोग. ये आपकी ओवरऑल मटेरियल बैलेंस से आ रही है. तो दो इक्वेशंस आपकी और हैं, एक आपकी ओवरऑल मटेरियल बैलेंस की इक्वेशन है और एक आपकी कंपोनेंट बैलेंस की इक्वेशन है. तो ये इक्वेशन हम लोग लास्ट क्लास लेक्चर में आप लोग देखेंगे, तो आपको लास्ट लेक्चर में ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी. तो आप लोग अगर चाहें तो इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं कि आप लोग को लग रहा हो कि ये du by dx इज इक्वल टू माइनस j by h, ये इक्वेशन कहाँ से आई है, तो आप लोग इसका डेरिवेशन जो है लास्ट लेक्चर में दिया हुआ है, तो उसको आप लोग कर सकते हैं. दैट इज सिंपल मटेरियल बैलेंस इक्वेशन. नाउ अगेन वी विल डू सॉल्यूट बैलेंस इक्वेशन. सॉल्यूट बैलेंस हम लोग करेंगे तो ओवर ए डिफरेंशियल एलिमेंट, तो एक सी इन आ रहा है, सी आउट जा रहा है, और यू इन है, यू आउट जा रहा है. एक हम लोग स्मॉल
डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे और Cp जो है वो 0 है दोनों साइड में। आप देख रहे हैं ऊपर से आ रहा है और एक नीचे से आ रहा है Cp, क्योंकि परमिएट आपका ऊपर से आ रहा है और परमिएट नीचे से आ रहा है, और जो फ्लो हो रहा है वो लेफ्ट टू राइट हो रहा है। सी इन और सी आउट है, यू इन और यू आउट है। ओके, और x से x प्लस डेल्टा x के बीच में हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। तो सॉल्यूट बैलेंस इक्वेशन आपकी जो आएगी वो सिंपली आएगी d बाई डी एक्स ऑफ यू सी इंटू टू डब्ल्यू एच इक्वल टू 0। इससे आपका जो आ जाएगा यू एक्स इंटू सी एक्स इज इक्वल टू यू आई इंटू सी आई। तो दिस इज योर कंपोनेंट बैलेंस। कंपोनेंट बैलेंस मतलब इसमें सी आएगा आपका, सीपी और सी इन सी आउट, ये आपका कंपोनेंट बैलेंस आएगा। तो ये हम लोग इधर सॉल्यूट बैलेंस इक्वेशन लिख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, तो इससे हम लोग के पास एक बार यू की प्रोफाइल है हमारे पास, तो उससे हम लोग कंसंट्रेशन की भी प्रोफाइल आ जाएगी हमारे पास। ओके, जस्ट उसकी ऑपोजिट होगी, इनवर्स हो जाएगी उसकी, यू आई बाई यू एक्स, क्योंकि सी एक्स बाई सी आई विल बी यू आई बाई यू एक्स। तो इट विल बी सिंपली 1 बाई 1 माइनस एल पी इंटू डेल्टा पी आई बाई एच लैम्डा म्यू आई एच लैम्डा यू आई इंटू साइन एच लैम्डा एक्स माइनस टी म्यू क्यू आई बाई 2 एच क्यूब डब्ल्यू लैम्डा डेल्टा पी आई cos h लैम्डा एक्स माइनस 1। तो जस्ट उसका रेसिप्रोकेशन हो जाएगा। ओके, तो अगर आपका देख रहे हैं आपकी वेलोसिटी प्रोफाइल अगर डिक्रीज होती है तो कंसंट्रेशन प्रोफाइल इंक्रीज होगी। आप ग्राफ में नीचे देख सकते हैं, अगर आपकी वेलोसिटी प्रोफाइल जो है वो डिक्रीज हो रही है तो आपकी कंसंट्रेशन प्रोफाइल विल इंक्रीज। so this you can see in the graph। तो आपके पास अब कंसंट्रेशन प्रोफाइल आ गई, वेलोसिटी प्रोफाइल आ गई, और जे की प्रोफाइल आ गई, प्रेशर की प्रोफाइल आ गई मॉड्यूल में। तो ये सब आप लोगों ने, एक हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के लिए ये सब कर लिया है। और आप इसको प्लॉट भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल प्लॉटिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, तो आप सिंपली इसको प्लॉट भी कर सकते हैं और आप सी की प्रोफाइल देख सकते हैं, यू की प्लॉट देख सकते हैं। तो कुछ आपको सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए कि जैसे हम लोग प्लॉटिंग के कैसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं और उसमें कैसे आप मैथमेटिकल इक्वेशंस पुट करते हैं, तो ये सब आपके पास होनी चाहिए। तो हम लोग ने सारी प्रोफाइल्स निकाल ली, कंसंट्रेशन प्रोफाइल निकाल ली, वेलोसिटी प्रोफाइल निकाल ली, और परमिएट फ्लक्स की प्रोफाइल निकाल ली, प्रेशर ड्रॉप की प्रोफाइल निकाल ली। तो ये सब हम लोग ने ट्यूबुलर मॉड्यूल के लिए इधर सॉरी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के लिए हम लोगों ने अभी किया है, और नेक्स्ट हम लोग ट्यूबुलर मॉड्यूल के लिए करेंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं कैसे हम लोग ने cos h, और इधर आपका sin h के टर्म्स में आएंगी सारी इक्वेशंस। एंड नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द ट्यूबुलर मॉड्यूल। अब हम लोग यही चीज हम लोग ट्यूबुलर मॉड्यूल के लिए करेंगे, और हम लोग ने अभी तक ये सब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में किया है, अब हम लोग रेडियल कोऑर्डिनेट्स में करेंगे। सेम इक्वेशंस विल बी डन इन रेडियल कोऑर्डिनेट्स। सो आपको कुछ इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन आपको याद रखनी है, हर जगह वो काम आएंगी आपकी। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको कौन कौन सी इक्वेशन याद रखनी है। तो एक आपकी ये गवर्निंग इक्वेशन ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर ड्रॉप, d2 डेल्टा p by dx स्क्वायर इज इक्वल टू 3 म्यू by h क्यूब इनटू j। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। और एक इक्वेशन आपको मटेरियल बैलेंस की याद रखनी है। ओके, एक इक्वेशन आपको मटेरियल बैलेंस की याद रखनी है, du by dx इज इक्वल टू माइनस j by h। ओके, और एक आपको कंपोनेंट बैलेंस की इक्वेशन याद रखनी है। तो ये दो तीन इक्वेशन आपको हर जगह आपकी पुट होंगी, और आप लोग लेक्चर 13 में भी आप लोग देख सकते हैं, आप लोग की लेक्चर 13 से आप लोग कुछ क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सी क्वेश्चंस आपकी कॉमन है, हर जगह आ रही हैं आप लोग की। तो एक आपकी ये सॉल्यूट बैलेंस इक्वेशन, मटेरियल बैलेंस इक्वेशन, और आपकी एक d2 डेल्टा p वाली इक्वेशन, ये तीन इक्वेशंस आपकी कॉमन इक्वेशंस हैं। तो कुछ इक्वेशंस आपकी कॉमन है, आपको वो याद रखनी है।
और इधर आपको साइन एच और कॉस एच के टर्म्स में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करना है। और तो साइन एच और कॉस एच का सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं आपकी। सो नेक्स्ट विल बी योर ट्यूबुलर मॉड्यूल। तो ट्यूबुलर मॉड्यूल में अगेन हम लोग फिर वही मैंने जैसे बोला कि पहली दो तीन इक्वेशन हम लोग को याद रखनी है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन एक हम लोग को याद रखनी है, डी डेल्टा पी वाली। और तो u इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 8 म्यू इंटू माइनस डी पी डी एक्स। और इस डी पी डी एक्स को हम लोग डी डेल्टा पी बाई डी एक्स लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बाई 8 म्यू। तो इससे हमारे पास डी डेल्टा पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 8 म्यू बाई आर स्क्वायर इंटू यू आएगा। और जब हम लोग मटेरियल बैलेंस करेंगे ओवर ए डिफरेंशियल एलिमेंट, और हम लोग के पास J इज इक्वल टू एल पी इंटू डेल्टा पी इस बार पुट करना है, तो हम लोग का मटेरियल बैलेंस जब हम लोग पुट करेंगे तो उससे हम लोग को पास आएगा डी यू डी एक्स इक्वल टू माइनस 2J बाय आर। सो दैट विल बी माइनस 2 LP डेल्टा पी बाय आर। तो जब हम लोग ये दोनों इक्वेशंस कंबाइन कर देंगे तो हम लोग की इक्वेशन आ जाएगी वही डी टू डेल्टा पी बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 म्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी यू डी एक्स। तो ये कुछ इक्वेशंस आपको हर जगह याद रखनी है। तो इससे आपकी और जे की वैल्यू हम लोग की आप देख सकते हैं ऊपर से, डी यू डी एक्स की वैल्यू ऊपर से आप लोग ले लेंगे। तो इससे हम लोग का डी टू डेल्टा पी बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 म्यू एल पी बाई आर क्यूब इंटू डेल्टा पी आ जाएगा। और बाउंड्री कंडीशंस अगेन वही हम लोग की बाउंड्री कंडीशंस है, एट एक्स इक्वल टू 0 डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा पी इन एंड एक्स इक्वल टू 0 डी डेल्टा पी बाई डी एक्स इक्वल टू 8 म्यू बाई आर स्क्वायर इंटू यू एन। तो दोनों बाउंड्री कंडीशन आपकी सेम लोकेशन पे है, एक्स इक्वल टू 0 पे है, तो इसलिए इसको कॉची बाउंड्री कंडीशन कहते हैं। Both boundary conditions are specified at the same location, so it is called a Cauchy boundary condition. So now you have to solve this differential equation, and delta p के टर्म्स में है आपकी इक्वेशन सॉल्व करेंगे आप। तो इससे आपका जो है अगेन साइनस और कॉसेज के टर्म्स में आएगा, और वही आप लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जैसे हम लोग ने पिछली बार किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो इससे हम लोग का कॉस एच और साइन एच के टर्म्स में ये आएगा। डेल्टा पी एक्स आपका जो आएगा वो होगा डेल्टा पी आई कॉस एच एम एक्स माइनस बीटा साइन एच एम एक्स, वेयर एम इज इक्वल टू अंडर रूट 16 म्यू एल पी बाई आर क्यूब एंड बीटा इज इक्वल टू 8 म्यू यू आई बाई एम आर स्क्वायर। तो डेल्टा पी एक्स आ गया, तो अब हम लोग का सारी वैल्यूज हम लोग इसी डेल्टा पी एक्स से अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग का डेल्टा पी आई आ गया, तो हम लोग डेल्टा पी आई माइनस डेल्टा पी एक्स को आराम से ही कर लेंगे। दैट इज योर एक्सियल प्रेशर ड्रॉप प्रोफाइल। So you will get it as delta pi into 1 minus cos h mx plus beta sin h mx। और टोटल एक्सियल प्रेशर ड्रॉप निकालना है अक्रॉस लेंथ में, तो x को हम लोग l से भी रिप्लेस करेंगे। तो आपका डेल्टा पी आई माइनस डेल्टा पी एल विल बी डेल्टा पी आई इंटू 1 माइनस कॉस एच एम एल प्लस बीटा साइन एच एम एल। ओके, तो x की जगह हम लोग ने l पुट कर दिया, तो हम लोग का पूरा लेंथ में कितना प्रेशर ड्रॉप है वो हम लोग को मिल जाएगा। और ये हम लोग की एक्सियल प्रेशर ड्रॉप प्रोफाइल है डेल्टा पी आई माइनस डेल्टा पी एक्स। तो वही चीजें हम लोग आपकी रेडियल कोऑर्डिनेट्स के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ने जो चीजें आपके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के लिए की हैं वही चीजें रेडियल कोऑर्डिनेट्स के लिए भी होंगी आपकी। और आपकी परमिएट फ्लक्स प्रोफाइल जो है जे अब हम लोग निकालेंगे। जे एक्स इक्वल टू जे हम लोग निकाल लेंगे, जैसे हम लोग ने जे पहले कैलकुलेट किया था। ओके, तो जे आपका आ जाएगा एल पी इंटू डेल्टा पी से। डेल्टा पी आपके पास है तो जे भी आ जाएगा आपके पास। जे एक्स इक्वल टू एल पी इंटू डेल्टा पी आई कॉस एच एम एक्स माइनस बीटा साइन एच एम एक्स। और आपको एवरेज, अगर आपको एवरेज फ्लक्स निकालना है तो जे बार एल इज इक्वल टू 1 बाई एल इंटीग्रल 0 टू एल जे एक्स डी एक्स आ जाएगा। तो ये आपका एवरेज आपका परमिएट फ्लक्स भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जे की प्रोफाइल आ गई, और उसी तरह आपकी फिर यू की प्रोफाइल आ जाएगी।
ओके, एक बार जे की प्रोफाइल आ गई तो आपकी यू की भी प्रोफाइल आ जाएगी, और यू की प्रोफाइल आ गई तो आपकी कंसंट्रेशन की भी प्रोफाइल आ जाएगी। ओके, तो ये आपका मटेरियल बैलेंस से आएगा और एक आपका कंपोनेंट बैलेंस से आएगा। तो आपका यू की जो प्रोफाइल आएगी वो होगी यू एक्स बाई यू एन इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एल पी बाई एम आर इंटू डेल्टा पी आई साइन एच एम एक्स प्लस बीटा इंटू 1 माइनस कॉस एच एम एक्स। और इसी तरह आपकी कंसंट्रेशन प्रोफाइल जो होगी वो जस्ट उसकी इनवर्स होगी। ओके, तो सी एक्स बाय सी आई विल बी यू एन बाय यू एक्स, तो इट विल बी जस्ट इनवर्स ऑफ दिस। तो 1 माइनस 1 बाय 2 एल पी जस्ट उसका इनवर्स हो जाएगा बाय एम आर डेल्टा पी आई, और वो सब आपका बाकी टर्म्स वही रहेगा। तो इस तरह से आपका कंसंट्रेशन की प्रोफाइल वही हम लोग ने रेडियल कोऑर्डिनेट्स के लिए कैलकुलेट करी है। यहाँ पे कंसंट्रेशन की प्रोफाइल हो गई आपकी, और सारी प्रोफाइल हम लोगों ने निकाल ली है। फ्लक्स की प्रोफाइल निकाल ली, कंसंट्रेशन की प्रोफाइल निकाल ली, वेलोसिटी की प्रोफाइल निकाल ली। तो यहाँ पर आपका सब चीज़ें साइन एच और कॉस एच के टर्म्स में आ रहा है आपका। और हम लोग ने टोटल एक्सियल प्रेशर ड्रॉप निकाल लिया है जो कि एम एल के टर्म्स में आ रहा है। हम लोग ने एक्स की जगह एल रिप्लेस किया तो उससे हमारा टोटल एक्सियल प्रेशर ड्रॉप आ गया। तो ये हम लोग ने सारी चीज़ें, अब वही चीज़ें हम लोग ने रेडियल कोऑर्डिनेट्स के लिए भी कैलकुलेट कर ली हैं। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हो गया आपका, रेडियल कोऑर्डिनेट्स हो गया आपका ट्यूबुलर मॉड्यूल के लिए। अब हम लोग का केस 3 आएगा। केस 3 आज हम लोग करेंगे खाली आपका हम लोग केस 3 रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के लिए करेंगे आज खाली, और केस नंबर 3 का ट्यूबुलर मॉड्यूल के लिए नेक्स्ट क्लास में होगा। तो आज हम लोग ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के लिए करेंगे, दैट इज योर स्पाइरल वूंड मॉड्यूल और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, केस नंबर 3। केस 2 आपका ये आपका कंप्लीट हो गया। तो आपका एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि आप मेम्ब्रेन मॉड्यूल की डेरिवेशन करिए, केस 2 के लिए डेरिवेशन करिए, और केस 2 में आप लेते हैं जे इज इक्वल टू एल पी इंटू डेल्टा पी, और आप यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर निगलेक्ट करते हैं केस 2 में। अब केस 3 में हम लोग को ऑस्मोटिक प्रेशर भी लेना पड़ेगा। केस 3 में हम लोग क्योंकि आपका हम लोग osmotic pressure we are not neglecting because osmotic pressure is a colligative property। तो यहाँ पर Cp जो है जीरो नहीं है, तो इट इज ए पार्शियली रिटेंटिव मेम्ब्रेन। पार्शियली रिटेंटिव मेम्ब्रेन Cp नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर विल नॉट बी नेग्लिजिबल। तो J विल बी नॉट Lp इंटू डेल्टा पी, बट J विल बी Lp इंटू डेल्टा पी माइनस डेल्टा पाई। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग कई बार कर चुके हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग सीएम के टर्म्स में हम लोग पुट कर चुके हैं कई बार। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में हम लोग सीएम और आरआर के टर्म्स में काफी बार B1 B2 कॉन्स्टेंट्स के साथ हम लोग पुट कर चुके हैं। तो वही चीज यहाँ पर हम लोग करेंगे, और इक्वेशंस कुछ आपको वही कॉमन याद रखनी है। तो पहली इक्वेशन है डी डेल्टा पी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 3 म्यू बाय एच क्यूब इंटू क्यू बाय डब्ल्यू, और Q और U के बीच में तो सिंपल रिलेशन है Q इज इक्वल टू 2WH इंटू यू। तो इससे आपका डी डेल्टा पी बाई डी एक्स विल बी माइनस 3 म्यू बाई एच स्क्वायर इंटू यू। तो ये आपका अभी आपका स्पाइरल वूंड मॉड्यूल या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के लिए हो रहा है आपका। ओके, तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये आपको याद रखनी है, फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट आपका डार्सीज लॉ है। तो यहाँ पर हम लोग एज सच सारी इक्वेशंस सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग जस्ट पहले इक्वेशंस लिखेंगे कि हम लोग के पास कौन कौन सी इक्वेशंस हैं। तो यहाँ पर हम लोग के पास कुछ सारी इक्वेशंस हम लोग एक बार लिख लेंगे, फिर हम लोग बताएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सिस्टम आएगा। ओके, तो सेकंड हम लोग इक्वेशन लिखेंगे डार्सीज लॉ, दैट इज जे इज इक्वल टू एल पी इंटू डेल्टा पी माइनस डेल्टा पाई। और डेल्टा पाई हम लोग जानते ही हैं कैसे, हम लोग सीएम और आरआर के टर्म्स में हम लोग ने लिख चुके हैं, B1 B2 B3 के टर्म्स में। ओके, तो सीएम क्यूब और सीएम स्क्वायर सीएम, ये तीन टर्म्स आपके B1 B2 B3 कॉन्स्टेंट्स आएंगे। तो इस तरह से हम इट विल बी ए फंक्शन ऑफ सीएम। ओके, तो
एक इक्वेशन ये आपकी आ रही है। अब हम लोग इक्वेशन से करके कलेक्ट कर लें पहले जरा। थर्ड इक्वेशन आपकी सॉल्यूट बैलेंस से आएगी, दैट इज डी यू सी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस जे सी पी बाई एच। तो वही आप लोग करेंगे, यू और सी जो है आपका इनलेट पे है और यू एंड सी एट आउटलेट, दैट इज एक्स प्लस डेल्टा एक्स। और फ्लो आपका ऊपर से देख रहे हैं जे और सी पी फ्लो आ रहा है, परमिएट फ्लो। तो W इंटू टू एच विल बी दी क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इससे हम लोग का ये आएगी, दिस विल बी फॉर कंपोनेंट बैलेंस। एक हम लोग का मटेरियल बैलेंस क्वेश्चन हम लोग के पास है और एक हम लोग का कंपोनेंट बैलेंस से आपकी क्वेश्चन आएगी डी यू सी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस जे सी पी बाई एच। तो ये कैसे आ रही है आपकी, ये हम लोग ने शो करा है यहाँ पे। तो एक इक्वेशन ये आएगी आपकी डी यू सी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस जे सी पी बाई एच। तो दैट विल सिंपली कम, बिकॉज हम लोग दोनों साइड एक्स प्लस डेल्टा एक्स पर और एक्स पर टू यू सी डब्ल्यू एच को बैलेंस करेंगे, और जो एक परमिएट फ्लक्स है प्लस जे इंटू डब्ल्यू इंटू टू डेल्टा एक्स सी पी। तो इससे हमारे पास आ जाएगा डी सी बाई डी एक्स इक्वल टू जे बाई यू एच इंटू सी माइनस सी पी। ओके, एक इक्वेशन ये आ रही है अब हमारे पास, और एक इक्वेशन हमारी के की इक्वेशन हम लोग के पास है। ओके, तो k इंटू सी एम माइनस सी इज इक्वल टू माइनस डी डी सी डी वाई एट वाई इक्वल टू 0। और एट स्टडी स्टेट द बाउंड्री कंडीशन ऑन द मेम्ब्रेन सरफेस। तो ये आपकी वही फिल्म थ्योरी वाली इक्वेशन है जहां हम लोग j को बैलेंस कर रहे हैं, j इंटू सी एम माइनस सी पी इक्वल टू माइनस डी डी सी डी वाई एट वाई इक्वल टू 0। तो इससे k सी एम माइनस सी विल बी नथिंग बट j सी एम इंटू आर आर। और j की वैल्यू हम लोग जब पुट करेंगे तो वो हम लोग वही सी एम स्क्वायर और सी एम क्यूब के टर्म्स में पुट करेंगे। और a1 a2 a3 हम लोग नए कॉन्स्टेंट्स ले लेंगे, जहां a1 इज इक्वल टू b1 आर आर, a2 इज इक्वल टू b2 इंटू 1 माइनस आर आर स्क्वायर, एंड a3 इज इक्वल टू b3 इंटू 1 माइनस आर आर क्यूब। और सो दिस विल बी k इंटू सी एम माइनस सी बाय सी एम आर आर एल पी। तो ये आपका k की इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन आप की k की इक्वेशन आ रही है, जहां पर a1 a2 और हम लोग ने डार्सीज लॉ भी पुट कर दिया है j के वाला। तो ये आपको इसका सॉल्यूशन आप लोग को पहले से पता है, i के टर्म्स में होता है जो हम लोग ने सॉल्व किया था इसको। ओके, k हम लोग का जो होता है वो होता है 1 बाई आई इंटू यू डी स्क्वायर बाई एच एक्स इंटू यू डी स्क्वायर बाई एच एक्स रेज टू द पावर 1/3। ये हम लोग ने डेवलपिंग मास ट्रांसफर बाउंड्री लेयर के लिए हम लोग ने ये k की वैल्यू जो है कैलकुलेट की थी, तो उधर से हम लोग i के टर्म्स में ये वैल्यू ले सकते हैं। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस ईटा क्यूब बाई 3 इंटू 0.42 लैम्डा n लैम्डा इंटू ईटा डी ईटा, where lambda is equal to j bar into del by ud square raised to the power 1/3। और j bar जो है that is 1/l integral 0 to l jx into dx। तो j bar is nothing but average over the length averaged permeate flux। ओके, तो ये तीन वैल्यूज जो हम लोग की, ये हम लोग ने कैलकुलेट कर चुके हैं। हम लोग i k और लैम्डा, ये हम लोग वैल्यूज जो है डेवलपिंग, आप लोगों ने मिड सम में किया था, k की वैल्यू आई की वैल्यू निकाली थी 0.42 लैम्डा, और ये सब हम लोग डेवलपिंग मास ट्रांसफर बाउंड्री लेयर में कर चुके हैं। तो वही के हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये हम लोग की अब 3-4 इक्वेशंस आ गई हैं, और ये एक देख सकते हैं आप, पहली ओडीई है हमारी डेल्टा पी की, दैट इज डी टू डेल्टा पी बाई डी एक्स स्क्वायर वाली। सेकेंड ओडीई हमारी मटेरियल बैलेंस की है, डी यू डी एक्स इक्वल टू F1। थर्ड ओडीई है हमारी सॉल्यूट बैलेंस की, dc by dx इक्वल टू F2। तो दिस इज ए सिस्टम ऑफ DAE। तो दिस इज सम अलजेब्राइक इक्वेशन, डायनेमिक अलजेब्राइक इक्वेशंस है हमारी। ओके, और इट इज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो दीज आर नथिंग बट सिस्टम ऑफ ओडीज। तीन ये भी, इसका भी मतलब आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है आपका। एडवांस मैथमेटिक्स आप लोगों ने पढ़ी होगी क्रेजिक से।
तो वहां पर आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और तो ये आपकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, DAE इसे कहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपको तुरंत, आपको जब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपको आपको मिल जाएगा सब। डेल्टा PX मिल जाएगा, UX मिल जाएगा, CX मिल जाएगा, CM की प्रोफाइल मिल जाएगी, CP की प्रोफाइल मिल जाएगी, और J की प्रोफाइल मिल जाएगी। और लेंथ एवरेज आप J बार की भी प्रोफाइल आपको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज ए स्टैंडर्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, IVP, और it is a system of ordinary differential equations, and it has a standard solution in advanced engineering mathematics. Okay. So this is how you solve the case number 3. केस नंबर 3 में आपने सारी इक्वेशंस इकट्ठा करके आपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपको पुट करना है, और वो सॉल्यूशन शो नहीं किया है, लेकिन आपका जस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपका वो जो है, आपको दैट विल गिव यू ऑल द प्रोफाइल, वो सारी प्रोफाइल आपको दे देगा। प्रेशर की प्रोफाइल दे देगा, वेलोसिटी की प्रोफाइल दे देगा, कंसंट्रेशन की प्रोफाइल दे देगा, जैसा हम लोग ने कैलकुलेट की थी अभी पिछले केस में, वही सब चीजें। जे की प्रोफाइल आ जाएगी आपकी, और CM की प्रोफाइल आ जाएगी, CP की प्रोफाइल आ जाएगी, क्योंकि CP आप जानते ही होता है CM इंटू 1 - RR होता है, और J बार होता है दैट इज योर लेंथ एवरेज परमिएट फ्लक्स, दैट विल बी 1/L 0 to L इंटीग्रल 0 to L JX DX। तो इससे आपका J बार भी आ जाएगा आपका। ठीक है? तो ये सारी चीजें आपकी इधर से आपकी, आप लोग केस नंबर 3 के लिए आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो आज हम लोग ने 2 केस करे हैं। आज केस 2 करा है आपने, मेम्ब्रेन मॉड्यूल के लिए केस 2 किया है, और फॉर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स एंड रेडियल कोऑर्डिनेट्स, एंड केस नंबर 3 यू हैव डन फॉर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। ओके। और लेक्चर 13 में हम लोग केस नंबर 1 हम लोग ने किया था फॉर रेक्टेंगुलर एंड रेडियल कोऑर्डिनेट्स। और सारे केसेस आपको पता होने चाहिए। और नेक्स्ट क्लास में आपका केस नंबर 3 करेंगे हम लोग फॉर रेडियल कोऑर्डिनेट्स। ओके। सो केस नंबर 3 में आपका होता है पार्शियली रिटेंटिव मेम्ब्रेन। पार्शियली रिटेंटिव मेम्ब्रेन ये होता है क्योंकि CP नॉट इक्वल टू 0 केस नंबर 3 में। तो CP 0 नहीं होता है इसमें, आपका जो मेम्ब्रेन का जो कंसंट्रेशन आता है वो 0 नहीं होता है, और इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर भी नॉट नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है दैट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर CP 0 नहीं है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी नेग्लिजिबल नहीं होगा। तो ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट विल डिपेंड ऑन CP। ओके। तो CP को हमने, जैसे केस 2 में हमने CP 0 लिया था, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी 0 लिया था। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट विल डिपेंड ऑन दी प्रेशर। तो इस तरह से आपको ये इक्वेशंस एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है आपको। और तो दिस के की और मिड वाली इक्वेशंस भी आपको याद होनी चाहिए। मिड वाली हम लोग ने आई की इक्वेशन की थी, लैम्डा की इक्वेशन की थी, ये इक्वेशंस भी आपको याद होनी चाहिए। लेक्चर नंबर 7 की इक्वेशंस हैं ये, लेक्चर नंबर 7 और 8 की इक्वेशंस हैं ये। तो ये सब आपको कुछ आपको पुराने लेक्चर्स का याद होना चाहिए। तो ये आपका मेम्ब्रेन मॉड्यूल्स का मॉडलिंग इसे कहते हैं। सो ये आपका दिस कंप्लीट्स योर लेक्चर नंबर 14।